السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میرا نام عمار مجاہد ہے اور لینئر الجبرا کے آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایپلیکیشنز آف سسٹم آف لینئر ایکویشن. اور آج ہم بات کریں گے پرٹیکولرلی ان نیٹ ورک انالیسس. یعنی بیسیکلی ابھی تک جو ہم نے مین کام کیا ہے نا، وہ سسٹم آف لینئر ایکویشن کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کیا ہے. مختلف میتھڈ پڑھے ہم نے، جیسا کہ جس میں گوشین ایلیمینیشن شامل تھا، گوس جارڈن ایلیمینیشن کے بارے میں سیکھا ہے، اور اسی طرح سے سسٹم آف لینئر ایکویشن کو سولو کیا ہے یوزنگ میٹرکس انورین. آج ذرا ہم ان کی اپلیکیشنز پڑھتے ہیں، پریکٹیکل اپلیکیشن، کیا یوسیج ہے ان کے. تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نیٹ ورک میں اس کی اپلیکیشنز پڑھیں گے. تو اس سے پہلے ذرا ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا نیٹ ورک ایکچولی ہوتا کیا ہے. نیٹ ورک سے میرا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. سو نیٹ ورک کی بیسیکلی رفلی اگر میں آپ کو ڈیفینیشن میں بتاؤں، دس از جسٹ دس سیٹ آف برانچز. یعنی برانچز کا ایک سیٹ ہوتا ہے، اور برانچز سے میرا مطلب یہ ہے، چلے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں، سیٹ آف برانچز. برانچز ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جہاں سے کچھ فلو کرتا ہے، فلو وتھ سم تھنگ فلوز. یعنی اگر میں آپ کو مثال دوں نیٹ ورک کی، تو آپ کے پاس یہ الیکٹریکل وائرز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. الیکٹریکل وائرز کا نیٹ ورک ہو سکتا ہے، اور الیکٹریکل وائرز جو ہے وہ برانچز کا کام کرتی ہیں، جس میں سے الیکٹریسٹی فلو کرتی ہے. اسی طرح سے آپ برانچ کو پائپس کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے واٹر یا آئل یا پھر کوئی اور لیکوڈ جو ہے وہ فلو کرتا ہے. اسی طرح سے ان برانچز کو ہم ٹریفک لینز کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹریفک لینز جہاں سے آپ کے وہیکولر ٹریفک فلو کرتی ہے، یا پھر آپ اس کو اکنامک لنکیج کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے منی فلو کرتی ہے. یہ کچھ ایگزامپلس دی ہیں میں نے آپ کو برانچز کی. ویل سو دس از برانچز. سو نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور ڈیفینیشن سمجھ لیں، ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوڈ. نوڈ بیسیکلی پوائنٹس ہوتے ہیں، اور وہ والے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی برانچز ملتی ہیں، جہاں آپ کی برانچز میٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا جو فلو ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو ذرا اس کو میں ایک شیپ کی مدد سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ویل سو یہاں پر آپ کے سامنے میں ایک شیپ بنا رہا ہوں جی، اور لیٹس سے دس ون، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ ایک الیکٹریکل نیٹ ورک ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. وائرز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ کی وائرز جو ہے وہ مل رہی ہیں ایک دوسرے سے. اینڈ دیز پوائنٹس آر بیسیکلی کالڈ نوڈس، یا پھر ان کو جنکشنز بھی کہہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے نوڈس کہتے ہیں، یا اس کو جنکشن بھی کہہ لیا جاتا ہے. دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ نوڈ بیسیکلی وہ والے پوائنٹس ہیں جہاں تین یا تین سے زیادہ وائرز جوائن کرتی ہیں. اور یہاں بیسیکلی نوڈس پر آ کر آپ کا جو فلو ہوتا ہے وہ کرنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ فلو آپ کا کوئی لیکوڈ کی، واٹر کی شکل میں ہو سکتا ہے. وہ بیسیکلی نوڈس پر آ کر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو ایک سے زیادہ پاتھ مل رہے ہوتے ہیں یہاں پر. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس سمپلی نیٹ ورک ہے. اب نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ نے سسٹم آف لینئر ایکویشن کو اس سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے، مطلب سسٹم آف لینئر ایکویشن کو کیسے آپ ان پر اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایگزامپل لیتے ہیں ہم ایک. چلے لیٹ سے یہی میں نیٹ ورک لے کے چلتا ہوں، اور اس کے اندر یہ 4 نوڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان کی طرح میں ان کو پہلے ڈائریکشن کچھ اسائن کرتا ہوں. لیٹ سے وائر جو ہیں آپ کی جو برانچز ہیں ان کو ہم کچھ آربیٹریلی کچھ ڈائریکشن جو ہے وہ ہم اسائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جانتے ہوں کہ کرنٹ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ ایمپیئرز میں میئر کیا جاتا ہے. تو لیٹ سے چونکہ ہم الیکٹریکل نیٹ ورک لے رہے ہیں، تو اس نوڈ پر 30 ایمپیئر کرنٹ انٹر ہو رہا ہے. یہاں سے 55 ایمپیئر جو ہے وہ لیو کر رہا ہے اس نوڈ سے، اور اسی طرح سے اس نوڈ سے لیو کر رہا ہے اور ادھر انٹر ہو رہا ہے. اور یہ میں کہہ دیتا ہوں لیٹ سے 15 ایمپیئر، اور اسی طرح سے اس کو میں 60 لے لیتا ہوں، 60، اور اس نوڈ سے ہم لے لیتے ہیں جی 35. ویل سو نیٹ ورک میں ہم نے کچھ آپ سمجھ لیں کہ بیسیکلی ہمارے پاس جو برانچز تھیں، کچھ ہم نے ڈائریکشن اسائن کی ہیں، اور ان کو کچھ ویلیوز دی ہیں جو کہ وہاں سے انٹر ہو رہی ہیں یا ادھر سے لیو کر رہی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے پاس کچھ وائرز یا کچھ برانچز ابھی بھی ایسی ہیں جن پر ہم نے کچھ اسائن نہیں کیا، ٹھیک ہے، جن پر آپ کے پاس آپ کو نہیں پتا کہ یہاں سے کتنا کرنٹ جو ہے وہ ان ہو رہا ہے یا کتنا آؤٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو فلو ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم الیکٹریکل نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں تو یہ کرنٹ کی صورت میں ہوگا، الیکٹریسٹی کی صورت میں ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے.
वेल सो आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर जो 3 वायर्स हैं, ठीक है ना, 3 वायर्स हैं जो कि अभी अननोन है, तो उनको हम रफली 3 जो है ना वो वेरिएबल असाइन करते हैं, 3 अननोन असाइन करते हैं। तो चले ऐसा करते हैं कि हम इनको आर्बिट्रेरीली अपनी मर्जी से कुछ डायरेक्शन असाइन करते हैं और उन डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से जी मैं इसको x कह देता हूँ, ये जो सेकंड वाला है इसको मैं y कह देता हूँ, और इसी तरीके से इस वाले को मैं z कह देता हूँ। 3 अननोन्स है, तो बेसिकली हमने इन तीनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीकाकार ये होता है कि आपने इन जो क्या कहते हैं उसको किरचॉफ लॉज, वो मैं यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया लेकिन आपने उसको यूज करना है। नोड पर जो करंट आउट हो रहा है, जो करंट इन हो रहा है, बेसिकली वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली पहले तो अपने नोड्स को जरा नेम दे रहे हैं आसानी के लिए। लेट्स से दिस इज ओवर नोड ए, इसको आप बी कह देते हैं और इसको हम सी कह देते हैं और फाइनली इसको डी कह देते हैं। अब देखें तमाम के तमाम नोड्स पर हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन बनेगी, जो करंट आपका इन हो रहा है, जो करंट आउट हो रहा है। तो चलें पहले जरा हम नोड ए की बात करते हैं। नोड ए में अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं 30 जो है 30 एम्पेयर इन हो रहा है, एक्स एज अ वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहा है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। वाई भी, ये दोनों आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी दिस विल बी एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 30, ठीक है। करंट जो आपका इन हो रहा है और जो आपका आउट हो रहा है, 30 जो आपका इन हो रहा है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और जो आपका आउट हो रहा है वो हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए आप जरा बात करते हैं नोड बी की। नोड बी पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो इन हो रहा है, नोड बी पर देखें जरा, x प्लस वाई, हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी x प्लस 15, ये इन हो रहा है, उसका सम आपने लेना है और इसी तरह से इक्वल किसके आ जाएगा, जो आउट हो रहा है। और यहाँ से बी से देखें 55 एम्पेयर जो है वो आउट हो रहा है, सिंपली 55 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास नोड बी हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी नोड सी की। सो अगर आप देखें नोड सी पर हमारे पास ये वाला नोड सी है, तो इसमें आपके पास जस्ट 60 जो है एम्पेयर इन हो रहा है और z प्लस 15 जो है ये हमारे पास आउट हो रहा है। तो जस्ट यहाँ पर लिख लें जी z प्लस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 60 जो है वो इसमें इन हो रहा है। फाइनली हमारे पास एक नोड रह गया, उसको भी देख लेते हैं। उसको हमने डी का नाम दिया हुआ है और जो हमारे पास डी है वहां पर बेसिकली अगर आप देखें y प्लस जेड, वाई और जेड जो है वो इन हो रहे हैं, ठीक है ना, y और z जो है वो बेसिकली इन हो रहे हैं, 35 आउट हो रहे हैं, तो 35 इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो देखें चारों नोड्स के अगेंस्ट हमें एक इक्वेशन मिल गई है, तो 4 इक्वेशंस हैं बट अननोन जिस केस में 3 है। तो आप सिंपली कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। गॉसियन एलिमिनेशन कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और सिंपल मेथड होता है जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने वाला, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो नोड बी और सी पर हमें डायरेक्टली कुछ अननोन्स की वैल्यू मिल रही है, ऐसे ही है। नोड बी की अगर बात की जाए तो हमारे पास नोड बी पर जो इक्वेशन है दैट इज 55 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। तो यहां से अगर आप दोनों तरफ से 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्टली आई कैन राइट x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 40। इसी तरह से अगर आप नोड सी पर देखें वहां पर भी हमें एक अननोन की वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है विच इज z प्लस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 60। वेल सो यहां से अगर आप दोनों तरफ से 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट z इज इक्वल टू सिंपली 45। तो 2 अननोन्स की वैल्यू हमें यहां से मिल गई है। थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप या तो नोड ए की इक्वेशन को यूज कर सकते हैं या फिर आप नोड डी की इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो जस्ट आप ये करें, चलें x की वैल्यू जो 40 है हम उसको इंसर्ट करते हैं जी नोड ए की जो इक्वेशन बन रही है उसमें, ठीक है। वेल सो ओके, तो नोड बी पर हमारे पास इसकी आंसर आया था 40 और इसी तरह से या दैट्स फाइन, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी y की, तो उसके लिए आप ये करेंगे y,
चलें पहले हम जरा x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं विच इज 40 एंड दिस इज इक्वल टू sorry this is not equal to 40 plus y, this is equal to 30, 40 plus y and this is equal to 30. यहाँ से हमें x की वैल्यू y की वैल्यू सॉरी क्या मिलेगी 30 माइनस 40. आप सिंपली लिख सकते हैं दोनों तरफ से माइनस आपने 40 करना है तो दिस इज इक्वल टू माइनस 10. तो देखें हमारे पास तीन अननोन्स थे, तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है. फर्स्ट वन इज x और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 45 और इसी तरीके सॉरी 45 नहीं है, y की वैल्यू है माइनस 10. y की वैल्यू जब भी हमने फाइंड आउट की है दिस इज माइनस 10 और z की वैल्यू 45 आ गई है. अब बेसिकली ये क्या चीजें हैं, x जो आपने ये वाली वैल्यू ली थी दिस इज 40, y की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 और z की वैल्यू हमारे पास है 45. तो ये जो आपके पास ब्रांचेस नजर आ रही हैं यहाँ पर करंट का फ्लो है एक्चुअली, ठीक है, और डायरेक्शन हमने शुरू में खुद से साइन कर दी थी इसको. ओके सो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं और वो हमारा एक्सरसाइज 1.9 है होवर्ड डेंटन की बुक और उसका क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 2. उसमें भी आपके पास एक चलें पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी. एक्सरसाइज हमारी है 1.9 और इसका क्वेश्चन नंबर मैं करने लगा हूँ 2 और इसमें हमारे पास एक अगेन नेटवर्क गिवन है और पहले तरह मैं वो नेटवर्क बना लेता हूँ यहाँ पर. ओके सो दिस इज द नेटवर्क. इसमें आपके पास काफी सारी ब्रांचेस आ रही हैं. ओके कुछ इस तरह से है, देन आपके पास फर्दर सो इस तरह से मैं रफ सा यहाँ पर बना रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं. ओके सो बेसिकली इस केस में हमारे पास टोटल 5 नोड्स हैं, उनको हम अभी असाइन करते हैं जरा. 5 हमारे पास नोड्स आ रहे हैं और दिस इज लेट्स से ओवर नोड ए. इसी तरह से इस नोड को मैं B का नाम दे देता हूँ. फर्दर लेट्स से इसको हम C का नाम दे देते हैं. मूव करें आगे तो इसको हम D का नाम दे देते हैं और इसी तरह से दिस इज द लास्ट वन, इसको हम E कह देते हैं, ठीक है. और इसी तरह से कुछ डायरेक्शंस भी हमारे पास इस केस में यस गिवन है, डायरेक्शन जो है वो सब की सब गिवन है. दिस इज बेसिकली ए नोड में ये 200 एंटर हो रहा है, 200 यूनिट्स, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन जनरल हम बात करेंगे. और ये हमारे पास एक अननोन है जिसको x1 का नाम दिया हुआ है, दिस इज ओवर x3. इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास 25 यूनिट्स नोड C में एंटर हो रहा है और ये आपके पास एक अननोन है जिसको x2 का नाम दिया हुआ है. वेल दिस इज x4 D में एंटर हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास है जी 150 यूनिट्स B में एंटर हो रहे हैं. और इसी तरह से दिस इज अनदर अननोन विच इज x5 जो कि B से लीव कर रहा है और E में एंटर हो रहा है. एंड दिस इज ओवर x6 और इसी तरह से ये आपके पास E से आउट हो रहा है 200 यूनिट्स और एक और आपके पास गिवन है दिस इज 175. सो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है. वेल तो अब जरा हम पहले तो जरा देखते हैं इसके नोड्स जो है टोटल 5 हैं और इसमें वेरिएबल 6 हैं, यानी 5 इक्वेशंस होंगी, 6 वेरिएबल्स होंगे, तो इसको हमने सोल्व करना होगा, ठीक है. तो चलें जरा इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पहले हम जरा इसकी हर नोड पर जो इक्वेशन बनती है उसको देख लेते हैं. तो लेट्स से दिस इज ओवर नोड ए. ओके इसको थोड़ा सा जरा नीचे से स्टार्ट करते हैं. ओके नोड ए है, फिर उसके बाद नोड बी पर इक्वेशन देखेंगे, देन वी हैव सी डी एंड ई. टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 5 और हर नोड के लिए जरा इक्वेशन लिखते हैं. पहले जरा आप बात करें ए की, तो ए में देखें x1 प्लस x3 दिस इज इक्वल टू 200. ओके सो पहले ऊपर जरा हम इन आउट लिख लेते हैं. पहले हम इन लिखेंगे देन हम आउट लिखेंगे. तो अब देखें जरा ए में इन क्या हो रहा है 200 इन हो रहा है और आउट क्या हो रहा है जी x1 प्लस x3. और इसी तरह से B की तरफ आ जाएं, B में इन क्या हो रहा है, B पर अगर आप देखें तो इसमें x3 इन हो रहा है, 115 हो रहा है एंड या दैट्स इट, x3 और 150. तो हमारे पास इसमें आ जाएगा जी x3 प्लस 150
एंड दिस इज इक्वल टू, आउट क्या हो रहा है बी से, x4 प्लस x5, क्या चीज आउट हो रही है जी, x4 प्लस x5। बेसिकली ये दो अननोन्स है, अभी इनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ओके, सो जरा पहले कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा हम चेंज कर लें। ओके, सो नेक्स्ट आ जाए सी पर। सी में देखें जरा इन क्या हो रहा है, सी नोड हमारे पास ये वाला है। ओके, तो इसमें आपके पास 25 और x1 इन हो रहा है, यानी x1 प्लस 25। सी नोड पर आपके पास आ जाएगा जी x1 प्लस 25 एंड दिस इज इक्वल टू, सी पर आउट देखें जी x2 आउट हो रहा है, तो सिंपली दिस इज इक्वल टू x2। और अब आ जाए डी पर। डी पर जरा देखें क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है। डी जो आपका नोड है ना, इसमें 4 ब्रांचेस इसके साथ कनेक्ट हैं, तो आपके पास x2 प्लस x4 ये इन हो रहा है, ऐसे ही है ना, x2 प्लस x4। और अब जरा देखें आउट क्या हो रहा है यहाँ से डी से, x6 प्लस 175, x6 प्लस 175। वेल सो लास्ट नोड हमारी रहेगी ये ई, इसमें देखें इन क्या हो रहा है, x5 प्लस x6, ठीक है, x5 प्लस x6। ओके, सो और इसमें आउट क्या हो रहा है बेसिकली 200, x5 प्लस x6 दिस इज इक्वल टू 200। तो ये आपके सामने हमारे पास जो है वो 5 इक्वेशंस बनी हैं, 6 अननोन्स हैं। तो सबसे पहले जरा आप इनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, देन हम इसको सोल्व भी करते हैं। वैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पहली क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी जी, x1 x2 का कोफिशिएंट 0 है, तो सिंपली मैं लिख देता हूँ x1 प्लस x3 दिस इज इक्वल टू 200। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए, आप यूं करें कि x4 और x5 को जरा इस तरफ ले जाएं और -150 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास बनेगा जी x3 माइनस x4 माइनस x5 एंड दिस इज इक्वल टू -150। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास नोड सी पर, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -25। लिख सकते हैं आप क्या, x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू माइनस का 25। और इसी तरह से डी पर आप आ जाए तो x2 प्लस x4 माइनस x6, क्या लिखेंगे, x2 प्लस x4 माइनस x6 एंड दिस इज इक्वल टू 175। और लास्ट पे x5 प्लस x6, ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे ही लिख लें, x5 प्लस x6 एंड दिस इज इक्वल टू 200। अब देखिए जरा हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं, 6 अननोन्स हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, आसान तरीका ये है कि आप पहले तो जरा इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। इस सिस्टम से जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है उसकी मदद से आप इसको सोल्व करें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फर्दर आप ये कर सकते हैं कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन लगा लें या गॉसियन एलिमिनेशन, जो आपको इजी लगे। तो पहले आपके पास बनेगा, पहली क्वेश्चन से देखें क्या बनेगा, पहली रो 1, x2 का कोफिशिएंट 0 है, x3 का अगेन 1 है, 4 का 0, 5 का भी 0, 6 का भी 0 और कांस्टेंट आपके पास आ रहा है जी 200, उसको भी लिख लें जरा। नेक्स्ट रो पे आ जाए तो x1 और 2 दोनों के 0 0 आ रहे हैं, x3 का 1 है, देन वी हैव -1, अगेन वी हैव -1, x6 का 0 है और इस केस में जो कांस्टेंट है दिस इज -150। थर्ड पे आ जाए, x1 का कोफिशिएंट 1 है, 2 का भी 1 है, दिस इज 0 0 0 0 और लास्ट पे आ रहा है जी माइनस का 25। वेल इसी तरह से लास्ट सेकेंड लास्ट इक्वेशन हमारे पास है जी, x1 का कोफिशिएंट 0, 2 का है 1, देन अगेन 0, 4 का अगेन 1, फिर 0, देन वी हैव -1 एंड दिस इज इक्वल टू 175। लास्ट वन 0 0 0, x4 का अगेन 0, 5 और 6 के 1 1 है और कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास 200। तो ये हमारे पास इस सिस्टम के केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बने। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको जरा रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में आपने लेके आना है और उसकी मदद से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में आपको जरा बता देता हूँ, बाकी क्योंकि ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है लेक्चर 2-3 में आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि फर्स्ट रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है विच इज 1, उसके नीचे आपने सब 0 करने हैं। देन आपने सेकंड रो पे आना है, सेकंड रो में आपने कोशिश करनी है कि जो ये वाली एंट्री नॉन जीरो है ना फर्स्ट रो वाली, उसके फौरी बाद यहाँ पर नॉन जीरो आ जाए।
अगर यहाँ पर नहीं आती तो फिर आपने बाकी रोज में देखना है। जैसे देखें ना, आपके पास R4 जो है और R2 आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर आपका ये वाला 1 है जो वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये चीजें हमने इन डिटेल सीखी हुई हैं। आपने करना यूं है कि हर रो में पहली नॉन जीरो एंट्री के नीचे सब 0 0 करते जाना है। ठीक है, और इसी तरह से फिर आपने बैकवर्ड काम करना है। हर रो में पहली नॉन जीरो एंट्री जिसको लीडिंग एंट्री कहा जाता है, फिर आपने उसको ऊपर भी 0 कर देना। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपको यहाँ से सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि आपके जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 है और अननोन्स आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5 है और अननोन जो है वो 6 है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो यूनिक तो नहीं ना हो सकता इस केस में। ठीक है, बट जो भी होगा तो आपने उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह अपना नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 2 डिटर्मिनेंट्स का वो सीखेंगे। डिफरेंट मेथड्स हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ लगी, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।